ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیو یارک سٹی کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کے بیچ ہونے والی ملاقات پوری دنیا میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر ملاقات کی تصویر لگاتار گردش کر رہی ہے۔ ٹویٹر پر سب سے زیادہ ان دونوں کی ملاقات میں جو بات چیت ہوئی، صحافیوں کے سوالوں کا جس طرح خوبصورتی کے ساتھ دونوں نے جواب دیا، اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ بھارت کے لیے، دنیا کے دوسرے جمہوری دیشوں کے لیے اس ملاقات کو آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے بھارت کو بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے، کیونکہ الیکشن سے پہلے، یا کہہ لیجئے زہران ممدانی کے میئر چنے جانے سے پہلے، دونوں طرف سے ایک دوسرے پر لگاتار حملہ ہو رہا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ زہران ممدانی کو کمیونسٹ بتا رہے تھے، نیو یارک سٹی کی فنڈنگ روکنے کی بات کر رہے تھے۔ وہ لگاتار کہہ رہے تھے کہ کسی بھی حال میں ہم زہران ممدانی کو نیو یارک سٹی کا میئر منتخب نہیں ہونے دیں گے۔ ٹرمپ کے ایک قریبی نے زہران ممدانی کو جہادی تک کہا تھا۔ دوسری طرف زہران ممدانی نے بھی بار بار کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فاشسٹ ہے، وہ آمر ہیں۔ زہران ممدانی نے کھل کر کہا کہ امریکی صدر کی وجہ سے اسرائیل غزہ پٹی میں جنوسائیڈ کر رہا ہے۔ امریکہ کی فنڈنگ کی وجہ سے اسرائیل غزہ پٹی میں بے گناہوں کو، فلسطینیوں کو مار رہا ہے۔ زہران ممدانی نے کھل کر کئی مرتبہ کہا کہ ان کے میئر بن جانے کے بعد اگر بنجامن نتنیاہو نے نیو یارک سٹی میں قدم رکھا تو بنجامن نتنیاہو کو گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے بنجامن نتنیاہو کے خلاف گرفتاری کا فیصلہ جاری کر رکھا ہے، اریسٹ وارنٹ جاری کر رکھا ہے۔ اس طرح کے بیانات دونوں طرف سے آتے رہے، لیکن جب 6 نومبر کو زہران ممدانی نیو یارک کے میئر منتخب ہو گئے، حالانکہ زہران ممدانی نے ابھی نیو یارک سٹی کے میئر کے طور پر اوتھ نہیں لیا ہے۔ جنوری میں وہ اوتھ لیں گے اور باضابطہ ان کی حکومت کا دور یا ان کے میئر کا دور شروع ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہی امریکی صدر ٹرمپ کی اور زہران ممدانی کی وائٹ ہاؤس کی آفس میں ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے دوران دونوں کے بیچ میں جس طرح کی بات چیت ہوئی وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے زہران ممدانی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، نیو یارک میں اب ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ محفوظ محسوس کریں گے۔ اسی طرح ٹرمپ نے کہا کہ زہران ممدانی کے اندر حوصلہ ہے، ہمت ہے، اور ہمیں امید ہے، بھروسہ ہے کہ ان کی قیادت میں نیو یارک سٹی ترقی کرے گا، غربت کا خاتمہ ہوگا، مہنگائی پر یہ کنٹرول پائیں گے اور لوگوں کو ایک اچھی زندگی وہاں جینے کو ملے گی۔ I think you're going to have hopefully a really great mayor. The better he does, the happier I am, I will say. There's no difference in party. There's no difference in anything. And we're going to be helping him to make everybody's dream come true, having a strong and very safe New York. And congratulations, Mr. Mayor. Thank you, Mr. President. ان دونوں کی ملاقات کے بیچ میں صحافیوں نے کئی سخت سوال کیا، اور ایک سوال ایسا تھا جہاں پر زہران ممدانی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مشکل صورتحال سے نکالا امریکی صدر ٹرمپ نے۔ دراصل ایک صحافی نے سوال کر دیا زہران ممدانی سے کہ آپ نے الیکشن سے پہلے یا چناوی کمپین کے دوران امریکی صدر ٹرمپ کو فاشسٹ کہا تھا، تو کیا اب بھی آپ ان کو فاشسٹ مانتے ہیں، ان کو آمر تسلیم کرتے ہیں؟ اور زہران ممدانی اس کی کچھ وضاحت کرنا چاہ رہے تھے، جواب دینا چاہ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی امریکی صدر ٹرمپ نے زہران ممدانی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہہ دیا، آپ ہاں بول دیجئے، مجھے خوشی ملے گی۔ آپ وضاحت کریں گے، ایکسپلین کریں گے کہ ہم نے اس وجہ سے کہا تھا، ویسے کہا تھا، اس سے اچھا ہے آپ ہاں کہہ دیجئے، کوئی دقت نہیں ہوگی۔ Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay. You can just say yes. Okay. All right. Okay? It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. اسی طرح امریکی صدر ٹرمپ کے ایک قریبی نے زہران ممدانی کو چناوی کمپین کے دوران جہادی کہہ دیا تھا اور کہا تھا اس سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اس سے نیو یارک سٹی کا میئر منتخب نہیں ہونا چاہیے۔ جب ٹرمپ سے صحافیوں نے یہی سوال کیا کہ آپ کے قریبی نے زہران ممدانی کو جہادی کہا تھا، تو کیا آپ اب بھی زہران ممدانی کو جہادی تسلیم کرتے ہیں، کٹر پنتھی مانتے ہیں؟ اور اس کے جواب میں ٹرمپ نے کہا کہ بالکل بھی میں ایسا نہیں مانتا، جس نے بھی کہا غلط کہا۔ زہران ممدانی ایک اچھا انسان ہے، اچھی سوچ والا ہے، اور اس کی قیادت میں نیو یارک سٹی کا آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا۔ Mr. President, Republican Elise Stefanik has campaigned multiple times by calling Zohran Mamdani a jihadist. Do you think you're standing next to a jihadist right now in the Oval Office? No, I don't, but she's out there campaigning, and you say things sometimes in a campaign. Isn't that sort of She's a very capable person.
But you really have to ask her about that. But no, I don't particularly. I think I met with a man who's a very rational person. अमरीकी सदर ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी के बीच में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। ज़ोहरान ममदानी ने अमरीकी सदर के सामने खड़े होकर कहा, न्यूयॉर्क सिटी के हर 5 में से एक शख्स इस काबिल नहीं है कि वो ट्रेन या बस में $2.90 खर्च कर सके, इतना पैसा बर्दाश्त कर सके। हमें उसके लिए काम करना है। ज़ोहरान ममदानी ने अमरीकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में सहाफ़ियों के सामने कहा, अमरीकी फंडिंग से इसराइल गज़ापट्टी में जेनोसाइड कर रहा है, नस्ल कुशी कर रहा है। उन्होंने खुलकर इसराइल के ज़रिए गज़ापट्टी में की गई जेनोसाइड और नस्ल कुशी की मजम्मत की और ट्रंप के सामने कहा। मुलाकात के बाद भी ज़ोहरान ममदानी ने सहाफ़ियों से बातचीत में यही कहा कि मैंने अमरीकी सदर के सामने खुलकर यह मुद्दा उठाया कि अमरीका को इसराइल की फंडिंग रोक देनी चाहिए, उसको आइंदा कोई भी फंड नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि इसराइल गज़ापट्टी में अमरीका की फंडिंग की वजह से जेनोसाइड कर रहा है और अमरीका इसके लिए जिम्मेदार है। Mr. Mamdani, you've accused the U.S. government of committing genocide in Gaza while President Trump was working on peace. Why that? I've spoken about the Israeli government committing genocide, and I've spoken about our government funding it. And I shared with the president in our meeting about the concern that many New Yorkers have of wanting their tax dollars to go towards the benefit of New Yorkers and their ability to afford basic dignity. ज़ोहरान ममदानी ने बाद में यह भी कहा कि उन्होंने अमरीकी सदर से बातचीत की और मुतालबा किया कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क का दर्जा मिलना चाहिए, फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद होना चाहिए, जेनोसाइड नहीं होना चाहिए और अमरीकी सदर और आप यानी मिस्टर ट्रंप इसमें अहम और कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। इन दोनों की मुलाकात की बहुत सारी वीडियो और तस्वीर वायरल हो रही है, लेकिन 7 पॉइंट को सबसे अहम माना जा रहा है। पहला पॉइंट था कि जब जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि क्या आप अब भी ज़ोहरान ममदानी को जिहादी मानते हैं, तो इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि किसी ने कह दिया लेकिन उसने गलत कहा। ज़ोहरान ममदानी एक समझदार और माकूल शख्स है और मैं उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। उसके बाद एक रिपोर्टर ने सवाल पूछ लिया कि ज़ोहरान ममदानी ने ट्रेन क्यों नहीं लिया और ट्रंप ने दफा करते हुए कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसके बाद एक और सहाफ़ी ने तीसरा सवाल कर दिया, ममदानी ने आपको फाशिस्ट कहा था, क्या इस पर आपको कोई एतराज़ नहीं है? और ज़ोहरान ममदानी इसका जवाब दे रहे थे, तभी अमरीकी सदर ने कहा कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है कि उन्होंने ज़ोहरान ममदानी ने उनको ऐसा कहा और ममदानी से कहा कि आप हाँ कह दीजिए, यस बोल दीजिए, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सहाफ़ी ने एक चौथा सवाल कर दिया कि ट्रंप ने कहा कि वो ज़ोहरान ममदानी के मेयर बनने की सूरत में ख़ुद को वहाँ ज़्यादा सेफ़ और महफूज महसूस करेंगे। उसके बाद पांचवा सवाल एक जर्नलिस्ट ने कर दिया कि मिस्टर ट्रंप, ज़ोहरान ममदानी ने आपको डेस्पोट कहा था, आमिर कहा था, क्या आपको इस पर कोई एतराज़ नहीं? और ट्रंप ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं, लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं। छठी बात इस मुलाकात की जो बहुत ज़्यादा अहम है वो ये कि अमरीकी सदर ने कहा कि मिस्टर ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क में एक ऐसे कमिश्नर को बरकरार रखा है जो बहुत ज़्यादा अहम है, बेहतरीन है और मैं उसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ। और सातवीं अहम बात ये थी कि अमरीकी सदर ने कहा कि न्यूयॉर्क सिटी को एक मरतबा फिर ग्रेट सिटी बनाने का, अजीम सिटी बनाने का मौका है और ज़ोहरान ममदानी इस काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। ये जो बातचीत हुई मुलाकात की, इसको बहुत ज़्यादा अहम माना जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और ज़ोहरान ममदानी डेमोक्रेट्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अमरीका में इन्हीं दोनों पार्टी का जलवा है, यही दोनों पार्टी अपना हुकूमत बनाती है, अपना सदर मुंतखब करती है और इन दोनों पार्टियों के बीच में भी शदीद लड़ाई होती है। इलेक्शन से पहले लगातार लफ्जी लड़ाई जारी थी, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद जिस तरह इन दोनों पार्टियों के रहनुमा ने मुलाकात की, उसको बहुत ज़्यादा अहम माना जा रहा है। शशि थरूर जो कांग्रेस के सीनियर रहनुमा हैं और एमपी है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को इसी तरह वाकई में काम करना चाहिए। इलेक्शन के दौरान अपनी राय के लिए भरपूर दलाइल के साथ लड़ना चाहिए बगैर किसी लाग लपेट के, लेकिन जब चुनाव पूरा हो जाए और अवाम अपना फैसला सुना दे तो एक दूसरे के साथ मिलकर
मुश्तरका मफाद में ताउन करना सीखना चाहिए, क्योंकि आप दोनों इसी मुल्क की खिदमत के लिए हल्फ उठा चुके हैं, औथ ले चुके हैं। उन्होंने आगे लिखा, काश भारत में भी यही रवैया ज़्यादा नज़र आए और मैं अपनी तरफ से इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। और भी सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, अलग अलग अंदाज से इसको लिखा जा रहा है। जैसे उमाशंकर सिंह ने ट्विटर हैंडल पर लिखा, दरअसल ज़ोहरान ममदानी अमरीकी सदर के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं कि न्यूयॉर्क में काम करने वाले लोग पीछे छूट गए हैं। दुनिया के सबसे अमीर शहर में हर 5 में से 1 आदमी ट्रेन या बस के लिए $2.90 नहीं दे सकता। जैसा कि मैंने आज ट्रंप से कहा, अब समय आ गया है कि उन लोगों के लिए भी हमारी पॉलिटिक्स के केंद्र में उसको जगह दी जाए, उसको वापस लाया जाए। ये कोट करते हुए उमाशंकर ने लिखा, ट्रंप के बगल में खड़े होकर ट्रंप को राजनीति सिखाते नजर आए ममदानी। ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह अंकित कुमार अवस्थी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, न्यूयॉर्क सिटी के नए ज़ोहरान ममदानी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे थे। रिपोर्टर ने सवाल कर दिया, ममदानी से पूछा, क्या आप यह मानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप फांसीवादी हैं? ममदानी जवाब देने ही वाले थे कि ट्रंप ने हंसते हुए बोला और कहा, कोई बात नहीं, बस हाँ कह दीजिए, समझाने से आसान है और मुझे बुरा नहीं लगेगा। कितना बड़ा दिल दिखाया डोनाल्ड ट्रंप ने। इसी तरह RT उर्दू ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि मैंने ट्रंप से बातचीत की कि इसराइली हुकूमत नस्लकुशी कर रही है और हमारी हुकूमत उसकी माली मदद कर रही है। एक और इलियास है, उन्होंने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ट्रंप के सामने ज़ोहरान ममदानी ने साफ कहा, इसराइल नरसंहार कर रहा है और अमरीकी सरकार उसकी फंडिंग कर रही है, जबकि न्यूयॉर्क की जनता चाहती है कि उनके टैक्स का पैसा उन पर खर्च हो, न कि इसराइल पर। ममदानी भारतीय मूल के हैं और इसे कहते हैं विदेश में डंका बजाना। तो इस तरह की जो बातें हैं ज़ोहरान ममदानी की, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लोग तारीफ़ कर रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी के बारे में पिछली कई वीडियो में मैंने आपको बता रखा कि ज़ोहरान ममदानी ओरिजिनली इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी वालदा है मीरा नायर और इनके वालिद है महमूद ममदानी, जो गुजरात से ताल्लुक़ रखते थे। ये दोनों इंडिया से ताल्लुक़ रखते थे। ये दोनों यानी ज़ोहरान ममदानी के वालिदैन इंडिया से हिजरत करके पहले अफ्रीका के युगांडा गए और वहाँ से उन्होंने अमेरिका हिजरत की, न्यूयॉर्क में रहे और अब न्यूयॉर्क के मेयर बन गए हैं ज़ोहरान ममदानी। एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि क्या ज़ोहरान ममदानी अमेरिका के सदर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो अभी तक जो अमेरिका का कानून और उसूल है, उस उसूल और कानून के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी अमेरिका के सदर नहीं बन सकते हैं। बक़िया तमाम ओहदों पर वो फायज़ ज़रूर हो सकते हैं। अमेरिका के सदर न बनने की वजह यह है कि अमेरिका का कानून यह है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट सदर वही बन सकता है जिसकी पैदाइश अमेरिका में हुई हो, जो बाई नेटिव अमेरिकी शहरी हो। और ज़ोहरान ममदानी की विलादत अमेरिका में नहीं हुई बल्कि अफ्रीका में हुई, इसीलिए ज़ोहरान ममदानी अभी तक के अमेरिकी उसूल के मुताबिक वहाँ के सदर नहीं बन सकते हैं। यही बात एलन मस्क पर भी नाफिज होती है। एलन मस्क के बारे में भी खबरें आ रही थी कि वो अमेरिकी सदर बन सकते हैं। एलन मस्क ने ट्रंप से लड़ाई होने के बाद अपनी नई पार्टी भी लॉन्च कर दी। हालांकि फिर ट्रंप और एलन मस्क के बीच में समझौता हो गया, दोनों साथ मिल गए हैं। पिछले दिनों जब सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के दौरे पर थे और ट्रंप के साथ मुलाकात में वहाँ एलन मस्क भी नजर आ रहे थे, तो एलन मस्क की भी पैदाइश अमेरिका की नहीं है, इसलिए वो भी अमेरिका के सदर नहीं बन सकते। बाद में हो सकता है रूल तब्दील हो जाए, चेंज हो जाए, लेकिन फ़िलहाल नहीं बन सकते। एक सवाल और आपके जहन में आ रहा होगा कि ज़ोहरान ममदानी ने चुनावी कैंपेन के दौरान बार बार वादा किया था, कहा था अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल में कदम रखा तो उसे गिरफ्तार कर लेंगे। तो क्या ज़ोहरान ममदानी गिरफ्तार कर पाएंगे? उनके पास इतना पावर है? और इस सवाल का जवाब सिर्फ यस या नो में नहीं मिल सकता, बल्कि इस सवाल का जवाब तफसील तलब है। अगर ज़ोहरान ममदानी चाहें तो बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस उनके कंट्रोल में रहती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि अमेरिकी कांग्रेस कोई कानून पास ना करे या सदर ट्रंप की तरफ से कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी ना किया जाए। सदर ट्रंप की तरफ से, सदारती महल की तरफ से अगर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी होता है तो फिर
तमाम मेयर के लिए या तमाम ज़िम्मेदारों के लिए उस ऑर्डर को फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। अगर ट्रंप की तरफ से, वाइट हाउस की तरफ से कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी न हो और बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क में कदम रख दे तो यकीनन ज़ोहरान ममदानी को इख्तियार होगा, राइट होगा कि वो बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार कर ले। लेकिन ये आसान नहीं होगा, कहना आसान ज़रूर था, क्योंकि अमेरिका में यहूदी लॉबी बहुत ज़्यादा मजबूत है। ट्रंप की पूरी कोशिश है यहूदी लॉबी को कमज़ोर करने की, इसी तरह ज़ोहरान ममदानी की भी कोशिश है यहूदी लॉबी को कमज़ोर करने की, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा था और इस वारंट से बचाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने बाज़ाब्ता एक बिल पास कर दिया। सदर की तरफ से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया और छूट दी गई बेंजामिन नेतन्याहू को, जिसकी वजह से उसने 4 मरतबा गिरफ्तारी का वारंट जारी हो जाने के बाद अमेरिका का सफ़र किया है। एक और सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि मेयर के पास पावर क्या होता है। तो मेयर के पास जो पावर है उसमें सबसे अहम पावर यह है कि पुलिस कमिश्नर कौन होगा ये मेयर तय करता है, और पुलिस कमिश्नर का मतलब यह है कि तमाम पुलिस मेयर के अंदर वहाँ काम करती है। फायर कमिश्नर भी मेयर तय करता है, हाउसिंग चीफ मेयर तय करता है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी मेयर तय करता है। उसके अलावा हेल्थ या सेहत से मुताल्लिक़ जितने मंसूबे होते हैं उनमें 40 से ज़ायद के सरबराह को भी मेयर ही तय करता है। कानून साज़ी यानी सिटी के लिए कौन सा कानून बन सकता है, कैसा कानून होना चाहिए, वो फैसला भी मेयर करता है, वेटो पावर भी मेयर होता है। अगर सिटी के जितने काउंसलर हैं उन सब ने कोई रूल पास कर दिया, कोई कानून नाफिज कर दिया, लेकिन मेयर चाहे तो वेटो पावर के ज़रिए उस कानून को रद्द कर सकता है, उस बिल को रद्द कर सकता है। इसके अलावा न्यूयॉर्क के मेयर को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है, यानी शहर में जो फैसला भी होगा तो वो मेयर के फैसले से होगा। तो मेयर के पास न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा पावर है। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे मालदार शहर माना जाता है, सबसे अहम और तारीख़ी शहर माना जाता है। पूरी दुनिया के लोगों की ख्वाहिश होती है अमेरिका जाने की, और अमेरिका में न्यूयॉर्क जाने की। न्यूयॉर्क को दुनिया का इकोनॉमी कैपिटल भी कहा जाता है, तो इस लिहाज से न्यूयॉर्क का मेयर बन जाना बहुत बड़ी बात है। और यही वजह है कि जब न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन लड़ रहे थे ज़ोहरान ममदानी, तो उनकी लड़ाई सीधे अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ देखी जा रही थी। ज़ोहरान ममदानी के सामने हरीफ कौन था उसके बारे में किसी को पता नहीं, बल्कि ट्रंप बैटिंग कर रहे थे उस उम्मीदवार के लिए जिसको उन्होंने सपोर्ट किया था, ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ बयान दे रहे थे। और यहीं से लोगों को अहमियत का पता चला कि एक तरफ अमेरिका का सदर जो अपने आप को पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स मानता है, जो पूरी दुनिया के निज़ाम को चलाता है, पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी में उसका इन्फ्लुएंस होता है, और वो न्यूयॉर्क के मेयर के साथ बराह रास्त टक्कर ले रहा है। लेकिन इन दोनों की जो मुलाकात हुई बहुत अच्छी रही, खुशगवार रही। और इस मुलाकात का तज्जिया अगर एक जुमले में किया जाए तो ये होगा कि ट्रंप ने एक बाप की तरह ज़ोहरान ममदानी के साथ शफ़क़त का, मोहब्बत का मामला किया, अपने बेटे जैसा सलूक किया, कंधे पर हाथ रखकर हौसला बढ़ाया, सपोर्ट किया, थपथपाया और कहा जो कुछ हुआ वो चुनावी लड़ाई थी, अब तुम आगे बढ़ो, तुम हमारे अपने हो और हम तुम्हें हर तरह का सपोर्ट करेंगे। ट्रंप का ये जुमला भी बहुत मैटर करता है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कुछ मैं ज़ोहरान ममदानी के बारे में समझ रहा था, ज़ोहरान ममदानी वैसे नहीं बल्कि उससे कुछ अलग निकले, और हम दोनों मिलकर अमेरिका के लिए बहुत कुछ करेंगे। न्यूयॉर्क एक अजीम सिटी बनेगा। But I just want to congratulate. I think you're going to have hopefully a really great mayor. The better he does, the happier I am. I will say there's no difference in party. There's no difference in anything. And we're going to be helping him to make everybody's dream come true, having a strong and very safe New York. And congratulations, Mr. Mayor. Thank you, Mr. President. Thank you. I appreciate it. इस मुलाकात के बारे में आपकी क्या राय है? ज़ोहरान ममदानी और अमेरिकी सदर ट्रंप के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मिले टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है उस पर क्लिक करके हमारी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।